بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ منیر خان میں زمینوں کے حوالے سے سنگین تنازع شدت اختیار کر گیا۔ ضلع انتظامیہ کا موقف ہے کہ یہ زمینوں محکمہ جنگلات کی ملکیت ہیں اور اسے دعوے کی بنیاد پر قبضے خالی کروائے جا رہے ہیں۔ تاہم دیگر افراد کا کہنا ہے کہ ان کی آباء و اجداد کی ملکیت ہے جسے مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر محکمہ جنگلات کے نام کر دیا گیا ہے۔ مری کے موضوع ٹنڈو اوائن سرحد لکوٹ اور احاطہ نور خان میں زمینوں کے حوالے سے کشیدگی بڑھ گئی ہے، جبکہ جدی مالکان کے مطابق انگریز دور حکومت میں لگائے گئے باونڈری پلرز اور اس حوالے سے سروے رپورٹ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ زمین ان کے خاندان کی قانونی ملکیت ہے۔ میرپور خاص عالمی یوم خواندگی کے موقع پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی ڈاکٹر پروفیسر چمن منشا کی قیادت میں بے نظیر بھٹو شہید گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سے پریس کلب تک آگاہی ریلی نکالی گئی ہے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے چمن منشا نے کہا کہ اس دن کو منانے کا مقصد تعلیم کو عام کرنا، بالخصوص بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعلیم کے بغیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ترقی نہیں کر سکتے۔ ڈیجیٹل اور سائنسی تعلیم کا مقابلہ کرنے کے لیے بچوں کو تعلیم دینا ضروری ہے۔ چمن منشا نے کہا کہ وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کی سرپرستی میں ضلع بھر میں 100 نان فارمل ایجوکیشن سینٹرز چل رہے ہیں۔ بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر کے طالبات نے حب الوطنی کے جوش کے جذبے کے ساتھ یوم دفاع منایا ہے۔ تقریب میں شہداء کی قربانیوں پر روشنی بھی ڈالی گئی ہے۔ وائس چانسلر بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر تہمینہ منگن نے تقریب کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے شہداء ہمارے ہیروز ہیں۔ میرا سلام ان دلریز ماؤں جن کے جوان بیٹوں نے ہمارے پیارے ملک پاکستان اور قوم کی سلامتی کے لیے اپنی قیمتی جانیں قربان کر دی ہیں۔ بیٹے دشمن کے لیے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے اور ہنستے مسکراتے ہوئے وطن عزیز پر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ طالبات یک طرفہ سے پیش کیا گیا طلباء میں کوئز مقابلے کا انعقاد بھی کیا گیا۔ پروگرام کا اختتام پروفیسر ڈاکٹر تہمینہ منگن کی قیادت میں یوم دفاع کے حوالے سے ایک ریلی بھی نکالی گئی۔ رخ کر لیتے ہیں ملتان کا، جہاں دریائے چناب بپھرنے لگا ہے اور پانی کی سطح ایک بار پھر بلند ہونے لگی، جبکہ ضلع ملتان کی تحصیل جلال پور میں بھی سیلاب پانی تباہی کی تاریخ رقم کر دی ہے۔ نشیبی علاقوں کے علاوہ شہر کو بھی سیلابی پانی سے خطرہ ہے، جس کو تاحال خالی کروا لیا گیا ہے۔ بھارت کی جانب سے دریائے چناب میں چھوڑے جانے والا دوسرا بڑا سیلابی ریلا اگلے 36 گھنٹوں میں ملتان حدود سے گزر گا۔ اس کے باعث مزید تباہی پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ اب تک 170 سے زائد دیہات دریائے چناب میں آنے والے سیلاب سے زیر آب آ گئے ہیں۔ شجاع آباد کے 25 موضوعات میں بھی پانی کی تباہی پھیلا دی۔ ضلع بھر میں 4 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر، ہزاروں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ مانسون اسپیل حیدرآباد میں کل سے شروع ہونے والی ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں حیدرآباد سے نمائندہ 5 نیوز جبران خان سے۔ جبران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، حیدرآباد میں مونسون کا نیا اسپیل اور کل سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ حیدرآباد میں ہلکی اور تیز بارش مسلسل ہو رہی ہے اور بارش کے بعد موسم جو ہے انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں ایسکو کی، تو ایسکو کی جانب سے بارش کی پہلی بوند کے ساتھ ہی جو ہے بجلی منقطع کر دی گئی ہے۔ شہر کے کئی علاقے جو ہے اس وقت بجلی سے محروم نظر آتے ہیں۔ ایسکو ترجمان کے مطابق بارش کے باعث جو ہے متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے ہیں، جس کے بعد جو ہے احتیاطی طور پر جو ہے بجلی بند ہے۔ اگر ہم بارش کی بات کریں تو کل سے شروع ہونے والی ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے، تاہم کئی علاقوں میں جو ہے بارش کے بعد شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سڑکیں اور شاہراہیں جو ہیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں اور بارش کے بعد جو ہے موسم کی اگر ہم بات کریں تو شدید گرم موسم تھا اور شہریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اب تک جو ہے کل سے 15 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے اور بارش کا یہ سلسلہ آئندہ 2 روز تک جاری رہے گا۔ جی
तफसीलात के लिए शुक्रिया। कसूर में दरिया सतलुज में तुग़यानी आने से मुतअद्दिद देहात पानी में डूब गए। हजारों एकड़ जमीन ज़ेरे आब, 3 लाख से ज़ायद जानवर मुतासिर, जबकि 155 के करीब देहातों में पानी दाखिल हो चुका है। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने गंडा सिंह वाला फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया है। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी इस वक्त गंडा सिंह वाला के मुकाम पर ही सूबाई वजीर बिलाल यासीन के साथ मौजूद हैं, जबकि इन हवाले से उनसे तफसीलात जानते हैं। सज्जाद आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर कसूर दरिया सतलुज सैलाब की तबाहकारियों की बात करें तो मुतअद्दिद गांव जो है ना वो देहात जो है सैलाबी सूरत हाल से जो है ना वो मुतासर हुए हैं और ज़िली इंतज़ामिया और हुकूमत की तरफ से उनको अमदाद देने का भी सिलसिला जारी है। इस वक्त जो सूबाई वज़ीर है बिलाल यासीन वो यहाँ पर लोगों को राशन तकसीम कर रहे हैं और जानवरों के लिए, मवेशियों के लिए जो है ना वो चारा तकसीम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे बात भी करते हैं। जी सर, बताइएगा कितने लोगों को इस वक्त ये सहूलियात फराहम की जा रही है और हुकूमत की सैलाब मुतासरीन के लिए क्या पॉलिसी सामने आई है? अभी हमारे पास ना 500 के करीब लोगों का ना जो ट्रक्स हैं उसमें जानवरों का चारा मौजूद है, कुक्ड फूड मौजूद है, टेंट्स मौजूद हैं। जितने भी जो कैंप्स हैं, कैंप्स में अलग से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जारी है। जो गंडा सिंह जो रोड है इस पे मौजूद हैं, इस पे हमारे साथ ट्रक्स मौजूद हैं जिसमें जो लोगों की सबसे ज़्यादा आस्किंग है वो है उनके जानवरों का चारा। वो हम उनको दे रहे हैं, 100 kg का एक पैकेट उनको दे रहे हैं। उसका पूरा रिकॉर्ड जो है ना वो उसको रजिस्टर्ड किया जा रहा है। जितने भी इफेक्टिव हैं उनकी मदद के लिए मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पे जो बन पाएगा उनको देंगे, खा वो कुक्ड फूड की शक्ल में हो, खा वो मेडिसिन की शक्ल में हो, खा वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की शक्ल में हो, खा वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, खा उनके जानवरों का जो सबसे ज़्यादा आस्किंग है उनकी जानवरों के चारे की शक्ल में हो, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। जी, जैसे आपने बिलाल यासीन की बात सुनी, उनका ये कहना है कि हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जो भी सहूलत सैलाब मुतासरीन को ज़रूरत होगी वो उनको मुहैया की जाएगी। जी जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुक कर लेते हैं मीरपुर माथेलो और गदोनवाह का, जहां तेज बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। गर्मी का जोर टूट गया और हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश के बाद शहर की गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। तो दूसरी जानिब बारिश के साथ ही शहर भर में बिजली भी गायब हो गई, जिस पर आवाम सख्त परेशान दिखाई दिए। इंतजामिया की जानिब से निकासी आब के मौसर इकदामात न होने के बायस पानी घंटों तक खड़ा रहा। शहरियों का कहना है कि बारिश के बाद बिजली की बंदिश और पानी जमा होने से सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। उधर स्कूल इंतजामिया ने भी बारिश के बायस बच्चों को मुश्किलात से बचाने के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया। रुक करेंगे गुजरांवाला का, जहां एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां और दूसरी तरफ आटे और मैदे की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया है। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हाजी जफरुल्लाह। सैलाब की तबाहकारियों की वजह से तमाम जो इलाके हैं वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी अजीरन उनकी बन चुकी है। बिल्कुल उनके घर तबाह हो चुके हैं, उनके जानवर जहाँ पर जो हम बहक हो चुके हैं और बिल्कुल उनके खाने पीने के लिए कोई जगह नहीं, सोने के लिए कोई जगह नहीं। वो पहले तंग दस्ती की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब रही सही कसर जो है आटे की कीमतों ने निकाल दिया है और सब्जियों की कीमतों में निकाल दिया है। अब आटे की कीमतों में बेतहाशा, मैदे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। मैं इस वक्त एक नान भाई की शॉप पर मौजूद हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि आटे और मैदे की कीमतों के वाले से वो क्या कहते हैं। सर आप बताएं कि आटे की कीमतें और मैदे की कीमतें वज़ीर आला का ऐलान है कि कम कर दी गई हैं, तो आप बताएं कि कम है या ज़्यादा है? वज़ीर आला से गुजारिश कि पहला आटे की गुत्थी 15 किलो आटे की गुत्थी 1000 रुपए की सी, अब आ रही है 1900 रुपए की। लिहाजा हुकूमत से अपील की जाती है कि इन्होंने मिलों वाले छापे मारन, रेट डेगन। मैदे की बोरी 80 किलो वाली 6500 रुपए की सी, अब आ रही है 10,500 रुपए की। रोटियां ने हुकूमत आंदी रोटी 14 रुपए की बेचो, फिर भी असी 15 रुपए की रोटी सेल कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे ने उन्होंने पालीए या कारोबार करिए। जी वज़ीर आला तो ऐलान कर रही हैं रोज़ के आटे की कीमतों, मैदे की कीमतें कम कर दी गई हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि ज़्यादा हो गई हैं। तो आप क्या वज़ीर आला से अपील करेंगे, क्या कहेंगे? वज़ीर आला से अपील है कि आटे वाल ख्याल करन, इन्होंने मिलों छापे मार के रेट थले करन, कोई असी भी खुशहाल होइए। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर नान भाई की बात सुनी। उनका कहना है कि आटे और मैदे की कीमतों में
बेतहाशा इजाफा हो चुका है। पहले जो 15 किलो का थैला था वो हमें यहाँ पर 900 रुपये का मिलता था, अब वही थैला जाकर हमें 1800-1900 रुपये का मिल रहा है और इतना हाथ से ज़्यादा डबल इजाफा हो चुका है। और मैदे की कीमत 80 किलो की जो थी वो हमें पहले जो 6500 की मिलती थी, लेकिन अब 10,000 से भी ऊपर चली गई है। 4,000 तक इसमें इजाफा कर दिया गया है। और हम कैसे, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वज़ीर आला तो हुक्म करती हैं कि 14 रुपए की रोटी फ़रोख्त करें, लेकिन हम सिर्फ 15 रुपए की रोटी फ़रोख्त कर रहे हैं। हम मजबूर हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं और फौरी तौर पर इन मिल वालों के खिलाफ, इन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि हमें भी आटा और मैदा सस्ता मिले और हम भी लोगों को रिलीफ दे सकें। जी। बहावलपुर के मारूफ एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी है, जबकि गेट 12.5 फुट तक पहुंच गया है। इससे 20 से जायद जमींदार बंद टूट गए हैं और आपको बताएं तो 50 से जायद बस्तियां भी ज़ेर आब आ गई हैं। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ बहावलपुर जावेद चौधरी से, जो इस वक्त एम्प्रेस ब्रिज पर ही मौजूद हैं। अपडेट कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एम्प्रेस ब्रिज बहावलपुर के मकाम पर, जहाँ पर दरियाए सतलुज में पानी की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी यहाँ से अभी गुजर रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या हालात हैं, वो कैसा समझते हैं इस्लाम को। ये जी देखो जी, पानी तो बहुत आ रहा है पानी, बस दुआ करें अल्लाह पाक, अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। हाँ, ये उसके लिए कुछ भी नहीं है, बस इंशाल्लाह अल्लाह, हम तैयारी तो बहुत कर रहे हैं, मजबूत है, पानी भी मजबूत है, बाकी अल्लाह मेहरबानी करेगी। जी, जिस तरह उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे मजबूत बांध बांधे गए हैं, लेकिन पीछे से जो पानी की सूरत हाल है उसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है और आने वाला हर टाइम, हर लम्हा जो है वो यहाँ पर खौफ व हरास पैदा कर रहा है। लेकिन यहाँ के बासी पुरुम्मीद हैं कि ये सारा मामला बखैर व आफियत से गुजर जाएगा। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। उधर अहमदपुर शर्किया में एक जानिब भारतीय आबी जारी है तो दूसरी जानिब मूसलाधार बारिशों ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है, जबकि बस्ती में सैकड़ों घराने पानी में महसूर हैं और हुकूमत से फौरी रेस्क्यू की अपील कर रहे हैं। तफसीलात हमारे नुमाइंदे मुफीजुर रहमान से। जी मुफीज, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका मौजाबद नूर में मौजूद हूँ, जहाँ पे दरिया सतलुज ने अपनी तबाहकारी जारी रखी हुई है। साथ ही मौसम ने करवट बदली है और मुसलसल बारिश ने भी इनको परेशान किया हुआ है। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में घर ज़ेरे आब आ चुके हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नजर ना आ रहा है, ना ही इंतजामिया की तरफ से कोई सहूलियात दी जा रही है। यहाँ के इलाका मकी मौजा बदनौर के हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं क्या परेशानी आपको लाक है इस वक्त। ना कोई बेड़ी मिलती पई है, ना कोई सारे बालों को चावण लांदा पे, मकान डठे हुए, पानी बहुत ज्यादा है, कोई साको सहूलत नहीं पे मिलती, कोई हुकूमत का बंदा नहीं पे आमदा, ना कोई सरकारी टेंट दितने उतू बारिश है कितना बहु परेशान थे। चलो वो सारे बाल तो चाहते बाहर टेंटा, कोई बाल नहीं पे चंदा, सारा कोई बंदा टोरते नहीं आया, जिम्मेदार थे ना कोई सारे कने हुकूमत का बंदा, असा मरते थे, परेशान थे। जी बिल्कुल, इलाका मकी इस वक्त सरापा एहतजाज है कि हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की जो है इमदाद नहीं दी जा रही, ताउन नहीं किया जा रहा अपनी मदद आपके तहत। ये बस्तियों से जो है निकल के इनखला कर रहे हैं, शहर की तरफ आ रहे हैं। इनका एक ही मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, हुकूमत पंजाब को, कि हमें फिर फौर जो है मराद फराहम की जाए। जी, शेखुपुरा में भी पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, जाली दूध बेचने वाला गिरोह पकड़ लिया गया है, जबकि 15,000 लीटर जाली दूध को मौके पर ही तलब भी कर दिया गया। मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुर शाहिद इमरान मार्त और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन गुलाम साबिर की ज़ेर निगरानी पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमों ने मयारी खुराक की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए दूध के टैंकर का 4 घंटे तक मुसलसल पीछा करने के बाद फिरोजवाला के करीब टैंकर को अपनी तहवील में लिया। इस मसनूई दूध की तैयारी में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ थाना फैक्ट्री एरिया में FIR दर्ज करवाई गई है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा के रख दी है। लाखों अफराद शदीद मुतासिर हुए। सादकाबाद में भी मकामी खाद और फैक्ट्री की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया है, जिसमें हजारों पौधे शहरियों में फ्री तकसीम किए गए हैं। तफसीलात शब्बीर अहमद की इस रिपोर्ट में।
सादिकाबाद में मौसमियाती तब्दीलियों से महफूज रहने के लिए फौजी फर्टिलाइजर कंपनी गोट माची की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर शहजाद अकरम ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। टी चौक के मुकाम पर हजारों पौधे शहरियों में मुफ्त तकसीम किए गए। रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर शहजाद अकरम का कहना था कि दरख्त इंसानी बका के लिए बहुत जरूरी है। माहौल में टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो फिनोमेना है ग्लोबल वार्मिंग उसका आज हमें अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से आपको पता है कि हमारे दरियाओं में, नदी नालों में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है। शजरकारी के लिए नीम जैसे सायादार और दीगर फलदार पौधे तकसीम किए गए, जिनकी ऊंचाई 6 से 8 फुट थी, ताकि ये पौधे जल तनावर दरख्त बनकर माहौल को सरसब्ज बनाएं। तकरीब में शरीक सीनियर मैनेजर प्रोडक्शन गुलाम सरवर का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर हो रहा है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस वक्त जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को फेस करनी पड़ रही है, पर्टिकुलरली उसमें पाकिस्तान भी जो है शामिल है, उसमें जो है वो शजरकारी जो है इसका एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है। सीनियर मैनेजर फाइनेंस जियाउद्दीन का कहना था कि बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी को कम करने का वाहिद हल शजरकारी है। हम सबको पता है कि मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है सैलाब की और बाकी दुश्वारियों की, उसकी बुनियादी वजह दरख्तों का कम होना ही है, मेन वजह। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी गोट माची का ये माहौल दोस्त इकदाम बहुत अहमियत का हामिल है, जिसके 2 रस नताइज बरामद होंगे। कैमरा टीम के साथ शफीक अहमद, 5 न्यूज़, सादिकाबाद। पत्तोकी में हजरत बाबा अब्बास रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर ट्रैफिक पुलिस ने ज़ायरीन की सहूलियात के लिए खुसूसी ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया है। डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद आसिम की हिदायत पर पत्तोकी और गिरदुनवाह से आने वाले ज़ायरीन को मुल्तान रोड समेत मरकजी रास्तों पर रोड क्लियर फराहम किया जा रहा है ताकि किसी किस्म की मुश्किलात पेश न आए। इंस्पेक्टर शकील अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ज़ायरीन और शहरियों को सहूलियात देने के लिए वार्डन्स को अहम मुकामात पर तैनात किया गया है। ट्रैफिक के रवाने को बरकरार रखने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बुरोकार लाए जा रहे हैं। उधर शिकारपुर में बारिश ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बारिश का पानी शहर की गलियों और मोहल्लों में जमा हो गया है। इसके बायस नशेबी इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेरियाब आ गए हैं। कई घरों में पानी दाखिल होने से कीमती सामान मुतासिर हुआ है, जबकि शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, जबकि आमदोरफ्त भी बुरी तरह मुतासिर हुई है और बिजली का निज़ाम मुअत्तल होने से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। खबर दें आपको कि मुल्तान के दरिया चनाब में पानी की सतह एक बार फिर बुलंद होने लगी। सैकड़ों देहात और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी की नजर हो चुकी हैं, जबकि सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंद तनवीर राजपूत से। जी मुल्तान में जो है 48 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया है। सैलाबी रेला जो बड़ा है वो दाखिल हो चुका है। इस वक्त जो उसकी तबाहकारियाँ हैं वो भी जो है अरूज पर पहुंच चुकी हैं। जो 150 से ज़ायद देहात हैं वो ज़ेरे आ चुके हैं। इस वक्त जो है लोगों का जो सामान है वो निकाल रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। हुकूमत ने दावे तो बहुत किए कि जी वो उनको रिलीफ फराम कर रही हैं। 4 लाख से ज़ायद लोग उन्होंने निकाल लिए, नकल मकानी करा दी गई, मगर नकल मकानी कराने के बाद उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। इस वक्त भी जो है वो मैं अकबर फ्लड बंद पर मौजूद हूँ। मेरे साथ जो मुतासरीन सैलाब वो मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं। जी आप बताइएगा, आपको क्या हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद? हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद भी नहीं हुई। हमारा ढेर सारा नुकसान हुआ है, मकान गिर गए हैं, 4 दीवारें गिर गए हैं, 3 दिन हो गए बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, चरपाइयाँ लगा कर बैठे हैं, कोई इमदाद वाला नहीं आया। जो आता है नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। वहाँ पे देखे यही बैठे हैं ऐसे चरपाइयाँ लगा कर, कोई इमदाद भी नहीं हुई। कोई हुकूमत का बंदा हमारे पास आए भी नहीं है और कहते हैं हम देंगे, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। जी आपने सलाम मुतासिर की जो है वो बात सुन ली। उनका यही कहना है कि हुकूमत के सिर्फ ज़ुबानी जो जमा खर्च है वो जारी है, हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, ना कोई खैमा मिला है, ना ही कोई खाने पीने की अशिया मिली है। इवन दो कि उनके जो जानवर हैं उनके लिए भी कोई चारा मुहैया नहीं किया गया। और इस कैंप जो अकबर फ्लड बैंक जो बंद है, इसके ऊपर जो है तकरीबन हज़ारों की तादाद में आबादी बैठी है और बेसर सामानी की हालत में वो बैठे हैं। उनका यही कहना है कि हुकूमत वक्त जो है वो उनको बेहतर और अच्छा रिलीफ मुहैया करे। जी
मंडी बहाउद्दीन के इलाके बोसाल में सफदर मोहम्मद वाल मोहम्मद हुसैनी ग्रुप के ज़ेर एहतमाम सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। मंडी बहाउद्दीन के इलाके बोसाल में सजने वाली इस अजीम शान महफिल मिलाद में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाकिस्तान के नामवर और आलमी शोहरत याफ्ता नात खां हज़रत ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश किए। उलमा कराम ने अपनी तकरीर में सीरत तैयबा और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल पर रोशनी डाली और बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मुनव्वर हुआ। महफिल के दौरान क़रिया और कुरानदाजी के ज़रिए एक खुश नसीब को उम्रे का टिकट भी दिया गया, जिस पर शुरका ने खुशी और मुसर्रत का इजहार किया। रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का, जहां दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। दरिया चनाब में इस वक्त जिले की हदूद में 3,50,000 से जायद क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शेख अदनान मौजू द्वाबा में ही मौजूद हैं। जी शेख अदनान, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फर दुआबा बंद पे। हाई फ्लड, जो बहुत ज़्यादा हाई फ्लड, इस जगह मैसिव फ्लड आया था। अब इसमें कुछ थोड़ी बहुत कमी होना शुरू हो गई है, 1-8 फुट जो है वो पानी की सतह नीचे हुई, लेकिन अभी भी इस जगह पानी जो वजूद है तकरीबन ज़िला इंतज़ाम के मुताबिक तकरीबन 1.5 से 2 लाख क्यूसिक का रेला अभी भी इस जगह से गुजर रहा है और तकरीबन कोई 50 से ज़ायद जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा बराह रास्त आबादी मुतासिर हुई है। लाख से ज़्यादा ऐसे है जो मवेशी जो ऐसे बहुत ज़्यादा जो मुतासिर हुए हैं। मेरे साथ जो अहला मकीन मौजूद है, उनसे हम जानते क्या मुश्किलात है इसको इन्हें पेश आ रही है। जी जी, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है हमें यहाँ पे। खाने पीने का सामान, राशन और उसके अलावा जानवरों का चारा और घर का सामान वगैरह उठाने के लिए तो अभी भी जो है ना 1 से 1.5 फुट का पानी जो है वो तकरीबन कम हुआ है, मगर अभी भी मजीद बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि जो पानी का बहाव है वो इतने ज़्यादा स्पीड से नहीं है, बहुत स्लो है। तो पीछे से सुना है कि और पानी का एक रेला भी गुजरने वाला है अभी यहाँ से, तो तकरीबन लगता है यहाँ पे हमें 2 से 1.5 माह जो है ना अभी यहाँ से हमें लग सकते हैं कि हमें घर से बाहर ये गुजारा करना पड़ेगा। बाकी अल्लाह खैर करे, उम्मीद करते हैं, अल्लाह पाक से दुआ भी करते हैं कि बहुत जल्द जो है ना ये मुसीबत जो है ना अल्लाह ताला टाल दे और हम जो है ना घरों को वापस लौट आए। जी, इनकी मुश्किलात बिल्कुल वाज़े तौर पे नजर आ रही है कि पानी क्योंकि खड़ा है और पानी का जो स्लो है डाउन होने में अभी देर लग रही है। इसके अलावा जो एक्सपेक्ट एक और रैली की जा रही है, उसकी वजह से पैनिक फैला इस इलाके में। रिहेबिलिटेशन का भी अभी मसला बाकी है और उधर दरिया चनाब ने बेरहम मौजों ने 18 हज़ारे के मौजूद तन रोड में भी एक गरीब बेवा खातून का वाहिद सहारा भी छीन लिया है। एक कमरे पर मुश्तमिल मकान दरियाबुर्द हो गया। मुतासिरा खातून पड़ोसियों के घरों में पनाह लेने पर मजबूर है। हुकूमती इमदाद पहुंची और ना ही मुखिर हजरात मदद को आ गए। आइए देखते हैं 18 हज़ारी से मोहम्मद शहजाद खान की रिपोर्ट। 18 हज़ारी दरियाए चनाब की बेरह मौजे, जिन्होंने 18 हज़ारी के मौजा रोड की बुजुर्ग बेवा खतून का वह सहारा, एक कमरे पर मुश्तमिल मकान, छोटा सा मकान भी निगल लिया। बुजुर्ग बेवा खतून अब अपने पड़ोसों के घर में पनाह लेने पर मजबूर है। न सर पर छत बची, ना ही कोई सामान। अकेली बुजुर्ग खतून सानिया इतना बड़ा, मगर हुकूमती इमदाद पहुंची ना ही इलाके की कोई फलाही तंजीम मदद के लिए आगे आई। पहुंची तो सबसे पहले चैनल 5 की टीम। मेरा कमरा ढाया गया है, मरियम निवाज मेरे नाल इमदाद कार में मरी सवानिया, मेरा 4 दीवारी ढाया गई है, कमरा ही ढाया गया। मैंने कोई इमदाद नहीं मिली, मेरी इमदाद कार मेरी ये अपील है। दवाइयाँ वाला ना इमदाद अपनी है, कोई चीज नहीं अपनी, कोई नहीं अपनी। मैं जरना इमदाद अपनी है, दवाइयाँ अपनी, कोई बंदा भी नहीं अपनी है। हूँ आए बैठे न वीडियो वाले इं ना, ए मेरी तस्वीर ही लाई खलन, मेरे मकान दी लाई खलन, कमरे दी 4 दीवारी कमरा है मेरा गिर गया। मैं हूँ हलाक डाडी तेरे मेरे घर में गुजारा करे लिया, बस मेरी अपील है मंजूर कर। दरिया चनाब की बेरहम मौजों ने एक बेवा खतून का घर का सहारा छीनकर हालात के बेरहम धारे के रहम करम पर छोड़ दिया है, तो दूसरी जानिब हुकूमती इदारे भी बेबस खतून की मदद तक न पहुँच सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शहजाद खान, चैनल 5 न्यूज़ 18 हज़ारी। महकमा मौसमियात की गई
मुताबिक हाल और गिरदुनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस बिजली गायब, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ अली रजा मीरजत से। जी अली रजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हाला, बिरशा और दीगर इलाकों में जो महकमा मौसमियात की जानिब से 7 सितंबर से 10 सितंबर तक जो है बरसात का इम्कान है वो है। कल से जो है वक्फे से बारिश का सिलसिला है जो वो जारी है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि नशेब इलाके जो हैं वो पानी की ज़ेर आब आ चुके हैं और जो है इंतजामिया की जानिब से हाला एक बड़ा शहर और तहसील का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अब तक जो है मुख्तलिफ चौकों चौराहों और मोहल्लों पर जो है पानी अब भी नज़र आ रहा है, जो है डुबे बन गए हैं। इंतजामिया जो है बिल्कुल अब तक जो है पानी निकालने में मसरूफ तो है, लेकिन उसको मुकम्मल अब तक नहीं किया गया। दूसरी जानब ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात की जानब से जो है 10 सितंबर तक ये बारिश जारी रहेगी। बिजली की बात की जाए तो बिजली की जो है फराहमी जो है गुज़िश्ता 5 से 7 घंटे से जो है मुअत्तल कर दी गई है। जी, पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुजरे से दूध की बड़ी सप्लाई नाकाम बना दी है। कैफे सजावल पुल सादिकाबाद में दूध बरदार गाड़ी पकड़ ली और 2000 लीटर गैर मयारी दूध तल्फ करके 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक फूड सेफ्टी टीम ने कैफे सजावल पुल सादिकाबाद में नाकाबंदी करने के बाद दौरान बरदार गाड़ी पकड़ी है। दौरान इंस्पेक्शन दूध में फैट, कुदरती ग़िज़ायत की कमी पाई गई। हज़ारों लीटर नाकिस दूध मौके पर ही ज़ाया कर दिया गया। और एक जानिब तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल ने आवाम को खौफ और हिरास मुब्तला कर रखा है, तो दूसरी जानिब आटे की होश रुबा कीमतों और गिरा फरोशी ने गरीब तबके की ज़िंदगी मज़ीद अजीरन बना दी है। सूरत हाल पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान मांगट से। जी, अपडेट कीजिएगा। से मुतासरा इलाकों के मकीन पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं। अब आटे की बढ़ती हुई कीमतों और ग्राम फरोशी ने अवाम की परेशानियों में मज़ीद इजाफा कर दिया है। शहर हो या देहात, हर जगह गरीब आदमी रोटी के हसूल के लिए रुल रहा है। आटा बहुत महंगे हैं, हम क्या करें? हुकूमत का यही हाल है। हुकूमत का यही काम है कि ये आटा सस्ता करे। महंगी जोर है, ठंड महंगी है कि राशन कोई भी है ये बहुत महंग है और पटाखे भी महंगे हो गए, भाजी भी। क्या खाओ, किसके घर जाओ? अब जी मांगते वो भी नहीं मिलती है। इसलिए आटा महंगा चला रहे हैं भाई, आटे गंदम महंगी मिल रही है और गंदम मिल नहीं रही। किसी से भी बात कर रहे हैं भाई गंदम चाहिए तो कह रहे हैं गंदम मौजूद नहीं है, अगर है तो 4041 रुपए मिल रही है। 4000 में गंदम खरीदेंगे भाई तो 400 रुपए हमारा भी हक है। हुकूमत से हमारी यही अपील है कि ये गंदम सस्ती हो जाए, हम आटा सस्ता दें हमारी। सर पहली बात तो ये जहाँ से हम गंदम परचेज कर रहे हैं वहाँ से 4000 रुपए की गंदम मिल रही है, उसके बावजूद उठाने का खर्चा है 30 रुपया और सफाई में 1 किलो जाता है, पिसाई में 1 किलो जाता है। 4230 रुपए का हमें पड़ रहा है, हम 4400 रुपए का चला रहे हैं। 110 रुपया किलो आटा। पहले तो आप भाइयों की मेहरबानी, ये जो चक्की वाले बोल रहे हैं 4000 या 42 रुपया गंदम, पहले तो अभी गंदम की सीजन है नहीं, गंदम मार्केट में है नहीं, गंदम इस टाइम मार्केट में है ही नहीं। जो चक्की वालों के पास स्टॉक पड़ी हुई है वो पहले वाली पड़ी हुई है 2600, 2700, 2800 वाली। हुकूमत से जो हमारा बोर्ड डिपार्टमेंट का आता है वहाँ से पॉलिसी आती है, जो भी रेट निकलता है वहाँ से निकलता है। किंतु हुकूमत का तकरीबन 2 साल हो गए, कोई रेट नहीं निकाल रही है। आटा 50 रुपए किलो महंगा होने पर अवाम सख्त मायूस है। अवाम का कहना है कि 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। कैमरा टीम के साथ इमरान मांगट, 5 न्यूज़, सैफर। आरिफ वाला मोटरसाइकिल डकैती के इल्ज़ाम में पुलिस एहलकार खालिद अजीज़ के खिलाफ DPO पाकपतन का सख्त नोटिस। पुलिस एहलकार को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शहरी की जानिब से थाना सदर में दरख्वास्त दायर की गई है। DPO पाकपतन जावेद इकबाल चदड़ की जानिब से वाक़े का सख्त नोटिस लिया गया। जतोई शहर और मज़ाफ़ात में रात गए से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश ने हर तरफ जलथल एक कर दिया है। तहसील जतोई के इलाकों में दरिया चनाब का सैलाबी रेला गुजर रहा है, तो दूसरी जानिब मूसलाधार बारिश ने मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। सैलाबी इलाकों में बारिश के बाद मज़ीद हालात ख़राब होने का खदशा है।
जंग में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 77 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश ने जहां मौसम खुशगवार किया, वहीं सैलाब मुतासिरीन के लिए मुश्किलात का तूफान खड़ा कर दिया है। बारिश के बायस पहले ही पानी में घिरे सैलाब मुतासिरीन खुले आसमान तले मजीद परेशानी का शिकार हो गए। कच्चे मकानात ज़मीन बोस हो गए हैं और ख़ानदान महफूज मकामात की तलाश में दर बदर हो रहे हैं। शहर के नशेबी इलाके बारिश के पानी में डूब गए। गलियों और बाजारों में कई फुट पानी जमा होने से आमदोरफ्त मफलूज हो गई है। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। झुड्डो और गिरदुनवाह में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसके बायस शहर और देही इलाके शदीद मुतासिर हुए। शाही बाजार समेत मरकजी कारोबारी मराकज़ और गली माहौल में पानी जमा हो गया है। निकासियाब का निज़ाम नाकारा होने से शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। मुसलसल बारिशों ने न सिर्फ शहरियों की जिंदगी को मफलूज कर दिया, बल्कि तैयार खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुँचने का खदशा है। कई देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है, जबकि तेज़ हवा और तूफ़ानी बारिश के बाद दरख्त भी जड़ों से उखड़ गए हैं। आगे बढ़ते हुए अपने नाज़रीन को अपडेट करें कि नारोवाल में सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मजहबी जमातों की जानिब से मुतासरा खानदानों में राशन तकसीम किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ मियाँ शहरोज से। जी मियाँ शहरोज, अपडेट कीजिएगा। इस टाइम मौजूद हैं नारोवाल मरकजी अहले हदीस यूथ फोर्स के ऑफिस में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वहीद भट्ट साहब। आइए इनसे जानते हैं जो सैलाबी सूरत हाल है, इस हवाले से इनकी जमात क्या इकदाम कर रही है। नाज़िम मालियात मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, जैसा कि आपके इल्म है कि वतन अजीज़ जो है वो बुरी तरह सैलाब में डूबा हुआ है। जो ही सैलाब जो है ज़िला नारोवाल के अंदर आया तो हमारी तंजीम अल फलाह वेलफेयर फाउंडेशन, जो कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का रफ़ाही अदारा है, अपने अमीर डॉक्टर हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब के हुक्म के मुताबिक मैदान अमल में निकले और हमारे वर्कर्स काबरीन जो हैं उन्होंने कश्तियों के ज़रिए और दीगर ज़राए के ज़रिए अपने मज़लूम परेशान हाल जो सैलाब से मुतासर अफराद थे उनको राशन भी पहुँचाया और खाना भी तैयार करके पहुँचाया। और ये सिलसिला हमारा डे बाई डे जो है वो जारी उसारी है। जी, आपने वहीद भट्ट की बात सुनी, उनका यही कहना था कि बड़ों की जो सूरत हाल थी वो तो कुछ और थी। छोटे बच्चे जो हैं वो दूध से बिलक रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम ने दूध के डब्बे ख़रीद के गाँव पहुँचाए और इन बच्चों को दूध की सूरत में जो है वो खुराक मुहैया की। और उनका कहना था कि जो जैसे हमारी तंजीम सैलाब बुजुर्गान के लिए काम कर रही है, बाकी तंजीमों को भी चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुख कर लेते हैं खैरपुर का, जहां खौफनाक हादसे में एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। मोरो हादसे में जाँ बहक 7 अफराद और वालिद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। गाँव जान मोहम्मद जानवरी में एक ही घर से 8 मैयतें उठने पर इलाका गम में डूब गया है। हर आंख अश्कबार थी। जनाजे में डिप्टी कमिश्नर फयाज हुसैन राहुज और असिस्टेंट कमिश्नर और सियासी रहनुमा शरीक हुए। मैयतें एक साथ उठने पर कोहराम मच गया, फ़ज़ा सोगवार हो गई, जबकि मरहूमीन की तदफीन गोलू फ़कीर कब्रिस्तान में कर दी गई है। शदीद बारिश के बाद जनाजे के दौरान वर्सा को मुश्किलात का सामना रहा। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। रहिए बाखबर 5 न्यूज़ के साथ।